ਮੌਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚਿਨੋਟੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹੀ ਫੇਮਸ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਜੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਲੀ ਤੇ 4 ਕੋਨੇ ਤੇ 4 ਦਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਲਾ ਕਣਕ ਲਾਈ ਏ। ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਕਣਕ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰੱਬਿਆਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਲਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਾਤੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ 2 ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਤੀਆਂ ਬਈ ਉਧਰ ਫੈਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਧਰ ਘੱਟ। ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਗਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਥੋਪੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਿਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਮੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 2 ਬਿਠਾਤੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਲਾਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 2 ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਬਿਠਾਤੇ, 2 ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਬਿਠਾਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਾਨਾ ਲੈ ਆਮਦੀ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਕਰਾਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਅਫਰੀਕਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਲੈ ਜਲਸਾ ਗਾਨਾ ਲਿਖੋ ਕਿ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ? ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣੇ ਉਲਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਾਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਐਮਦੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਯਾਰ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਗਾਨਾ ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? 2 ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਲਿਖਣ ਜਲਸਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨ ਅਫਰੀਕਾ, ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 2 ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਗੈਰ ਜਾਨਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਕਵਾ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤਕਵਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ। ਬਾतें हो गई हैं 101। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ 4 ਕਰੋੜ। नहीं, 101 बातें हो गई हैं 101। ये थे जी जनाब कादियानी मुरब्बी रहील साहब। हाँ जी, इनकी बातों की स्पीड जरा सुनिएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, अजीब लोग ने कि पाकिस्तानों बंदे चुक चुक के दूसरे मुल्क च ट्रांसफर कर। उमर भाई, मुफ्ती साहब कोई क्लिप चला रहे हैं। 101 अल्लाह के फजल से हो चुकी हैं 101 अल्लाह के फजल से तकसीम हो चुके हैं। अब कितने फार्म तकसीम है? 82, 84, 87 फार्म तकसीम हो चुके हैं। हो चुकी हैं 101 अल्लाह के फजल से। 90 बातें भी 90 फार्म तकसीम हो गए हैं अल्लाह के फजल से। ओके, अल्लाह हाफिज। आज की मेरी आखिरी गुफ्तगू थी। जिन्होंने जब अच्छा कितने बंदे यार इनको अभी बिठाएं, अभी चाय वगैरह पिलाए, इतनी जल्दी फॉर्म वगैरह नहीं देने, क्योंकि मैंने स्टडी तो कर ली हुई है। हाँ ठीक है जी जी। नहीं 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 नहीं, नहीं अभी फॉर्म नहीं 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 अभी फॉर्म नहीं देने भाई। इन्होंने 10 दिन हो गए स्टडी कर रहे हैं, इन मौलवी का भी और झूठ पकड़े और फिर फॉर्म देने। फॉर्म तो अभी नहीं देने, अभी नहीं देने अभी यार। ना 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 अभी नहीं देने फॉर्म, बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ कितने बड़े यार, इनको पहले चाय वगैरह पिलाए। हाँ हाँ नहीं यार, इनको पहले चाय वगैरह पिलाए। अभी अल इस्लाम लाइब्रेरी में गए। हाँ, अल इस्लाम लाइब्रेरी में जितने मौलवी इतराज कर रहे हैं हमारे हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पर, वहाँ पे स्टडी कुरान और हदीस की रोशनी में वहाँ पे हर चीज मौजूद है। उनको पहले स्टडी करवाएं। अच्छा, इन्होंने कहा नहीं, इनको दे दे फॉर्म, इनको दे दे फॉर्म। कितने हो गए? 11 बंदे इंशाल्लाह ताला। ओके आज। और कुल कितने आ चुके हैं? 60। ओके ठीक है। से लोग जो अहमदी हो रहे हैं उनकी बातें भी बननी है। मैंने उधर भी जाना है क्योंकि मैं आज छुट्टी है, कल भी मेरी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है। उसके बाद फिर हमारा बिजनेस इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएगा। दीन और दुनिया में अल्लाह ताला खुद ही कामयाबी। वो 4 नंबर जो टीचर है, 5 नंबर, उनको भी बैट फॉर्म दे दें। उन्होंने कंप्यूटर में इस्लाम कर ली स्टडी। अभी ना दें, फिर अभी ना दें, फिर बाद में देते हैं। उनको को अच्छी तरह स्टडी करें।
हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। क्योंकि वो हमारी तो आज यहाँ पे सारी रात ऐसे यहाँ पे रौनक लगी हुई है, लोग दौड़ आ रहे। सीरिया के कितने लोग आए हैं भाई? 40 आ गए हैं। अच्छा अच्छा, इनको यार अब ये 13 नंबर टिश को भी ये बैच फॉर्म दे दें, 13 नंबर टिश को। हाँ 124 हो गए हैं। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके भी शुक्रिया। ਸਪੀਡਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂ ਸਪੀਡਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਈ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਾਸਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ, वो हाँ भाई, डिश, हाँ भाई, 13, वो 13, 13, 4 14, नंबर डिश 14, पे 15, भी 15, फार्म 15। दे दें और 13 नंबर डिश पर भी दे दें। हाँ जी, आज हो गई हैं 101 और आज हो गई हैं 196, तो टोटल हो गई हैं 415। और जनाब अभी मैं जा रहा हूँ, शाम भी जा रहा हूँ, यमन भी जा रहा हूँ, सीरिया भी जा रहा हूँ। अच्छा रहील साहब, आपने बात ना बारी बारी करनी है। रहील साहब आप आए हैं ऊपर, तो बारी बारी बात कर। नहीं वो आप ऊपर आ रहे हैं, रहील साहब ने कॉल डाली है। रहील साहब बारी बारी बात करें। बड़े बड़े मुफ्ती साहब मुझे ना ये सुन के ना बातें सुन के हकीकतन वो मंडी वाला माहौल याद आ गया पाकिस्तान में जो हुआ करता था कि ना भी 40 40 50 50 60 60 70 70 70 70 70 70 80 80 80 80 90 90 90 100 100 हाँ मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ तबलीग साडी करती, बड़ा शुक्रिया। कोई भी नहीं छेड़े भाई रेल साहब। एक एक करके बात करनी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं इजमा दूसरे बरात पे इसी मुफ्ती साहब को मोची और पता नहीं क्या कहा जा रहा है, तो आप वहाँ पे क्यों नहीं जाते? अच्छा मुझे रेल ये साहब, छो बताएं। यार जो भी कहते हैं, मुझे नहीं ये क्यों बताएं। क्यों आपका इजमा है, देवबंद आपको पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, लूती सुने तो यार, पता सुन नहीं भी क्या लिया। क्या कह रहे हैं, तो उनको जवाब दे जाके। अच्छा सुन भी तो लेना। अच्छा मिर्जा कादियानी नहीं कोई इल्हाम हुआ था? मैंने सवाल किया है भाई, मैंने सवाल किया है, वहाँ पे अपना दिफा करें। मैं तो आपको नेक इंसान समझता हूँ, लेकिन देवबंद वहाँ पे आपको मौलवी लूती मौलवी मोची पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, उनको जवाब दें जाके। अच्छा सुन भी ले, अब मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जो है ना बीच में बोलेंगे तो फिर जवाब तो नहीं ना दिया जाएगा। अभी मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे ये उमर भाई को कि वो गालियां देते हो, ये करते हो, तो आप तो खुद तस्लीम करते हैं कि मिर्जा कादियानी भी गालियां दिया करता था। नहीं कोई गालियां नहीं देते थे। नहीं ये ले, आप इनकार कर रहे हैं तो ये सुन लें, अपनी अपनी नहीं तो ही बात वो सुन तो लें। मेरे हक में बात जाती, जवाब वाल जवाब में अगर किसी को कुछ कहा गया तो वो गाली नहीं है। सुने तो सही ना, ये ले सुने। मिर्जा साहब ने गालियां दी, तो हम जब बताते हैं कि पहले मौलवियों ने गालियां दी थी, तो मिर्जा पहले साहब मौलवियों ने गालियां बस दी। ठीक है। यार अभी ये ऑडियो सुन तो लेना, ये मुझे दोबारा नहीं repeat मैं करनी समझ गया हूँ, हम पहले नहीं, मौलवियों ने समझे दी कहाँ है, हैं? मैंने आप कहा है ना। समझे हैं, लोग तो नहीं ना समझे। ऑडियो मुझे हाँ चलाने मैं दें। पहली दफा सुन रहा हूँ, मैं यार, पहली सुन दफा तो ले। सुन रहा हूँ, सुना जी, आपकी सुना। बात आपको सुना रहा हूँ, क्या मसला है? मिर्जा साहब ने गालियां दी, तो हम जब सुनाए, बताते हैं कि सुनाए। पहले मौलवियों ने यार फिर मुझे दोबारा सुनानी पड़ेगी, आप सुन लें पहले। मिर्जा साहब ने गालियां दी, तो हम जब बताते हैं कि पहले मौलवियों ने गालियां दी थी, तो मिर्जा साहब ने जवाबी इल्जाम में गालियां दी, और ये जाहिल ने हाँ ठीक है, यही बात मैं ठीक कह है, रहा हूँ बिल्कुल कि ठीक है। मिर्जा अच्छा कादियानी मौलवी ने साहब जरा इस्लाम बताएं कि जब इंसान पे जुल्म होता है तो उस जुल्म का जवाब दिया जाता है कि नहीं? बिल्कुल दिया जाता है जी, दिया हाँ जाता तो है। अगर किसी ने गाली दी है तो मैं उसे कहूंगा ना यही गाली तुम पे बैक। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बस अगर ठीक वही मिर्जा बिलफर्ज साहब ने मैं किया, कहता हूँ, मौलवी यार, गालियां देते सुने थे, तो खाते सही, पे हाँ। गोलियां देते थे। ये तो हमारे हक सुने। में बात कर दी। अल्लाह ताला आपको अपने जमान मुबारक करे, आप हमारे हक में कैसे अल्लाह ताला आपके मुंह से ऐसे हमारे हक में बातें करवाता है। अच्छा सुन भी लिया करें यार रेल साहब, आप की ये पुरानी आदतें जो ना अभी तक नहीं गई। अच्छा चले, बिल फर्ज अभी मिर्जा गुलाम कादियानी मेरे सामने है और मैं उसको कहता हूँ ओए गश्ती के बच्चे, तो मिर्जा कादियानी वो आप मुझे देखना कैसे- यार, यार, एक मिनट सुने तो सही आपने ना। अब यार, सुन तो मोची ले। मौलवी वाली बात की है ना, यार, सुन आपने तो मोची ले मौलवी ना। देवबंद सही कह रहे हैं ना। सुने तो अब सही। तुम इनडायरेक्ट मिर्जा तुम जो कादियानी बकवास कर मुझे रहे हो इसका पलट मतलब के यही कैसे है ना। जवाब देता, वो जरा नहीं मैं मौलवी सुनना मोची मुझे ये बता, देवबंद जो तुम्हें कहते हैं वो फिर मैं कहता हूँ कि देवबंद तुम्हें कह रहा है वो मोची, तो क्या जवाब दोगे? तुम जो कह रहे हो मिर्जा साहब को गाली दे रहे हो अच्छा, मिसाल मैं दे अगर के, बिल तो फर्ज मैं भी तो मिर्जा कहता हूँ कि कादियानी देवबंद नहीं मेरे कहता सामने मोची होता। लूती और मोची लूती, तो फिर क्या जवाब देते हो? यार देखिए सुन तो लेना। नहीं आप तुम सुनते भाई नहीं। मिर्जा साहब के ऊपर गाली दे रहे हो, तो फिर नहीं। देवबंदी जब आपको कहते हैं मुची आप लोती, अभी तो फिर कह क्या रहे हैं जवाब कि दोगे? मिर्जा कादियानी को ये मौलवी हाल गालियां है। देते थे, तो वो ही उठा के वो मिर्जा कादियानी आगे सुना देता था, तो ये इसी वजह से लोग देखो मिर्जा सरकारी कादियानी- मुसलमानों, आपके मुफ्ती का ये हाल है ये हाल है आपके मुफ्ती का। सुने तो सही ना। मतलब ये कि मिर्जा कादियानी को लोग हरामी कहते थे, आप ये कहना चाह रहे हैं?
इस वजह से मिर्जा कादियानी लोगों को फिर हरामी कहता था। आए ना, किधर चले गए यार, ऐसे तो ना करें। आपने एक कायदा कुलिया अभी बताया है कि भाई लोग मिर्जा कादियानी को गालियां देते थे तो वही गालियां मिर्जा कादियानी आगे उठा के फेंक देता था। तो यहाँ रूहानी खज़ाइन जिल्द 9 सफ़ा 31 के ऊपर वो कहता है हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और हलाल ज़्यादा नहीं। तो अब हम क्या समझें कि लोग मिर्जा कादियानी को हरामी कहते थे, वलदुल हराम कहते थे और कहते थे ये हलाल ज़्यादा नहीं है, तो वही गाली फिर मिर्जा कादियानी ने आगे उठा के दे दी। मुफ्ती क्या साहब आप ये कहना चाह रहे? कता कलामी माफ, अगर किसी ने ऐसा कहा है ना तो उनकी बात में वजन है, क्योंकि हमें पता लगता है चीफ ऑफ पंजाब के अंदर अगर हम पढ़ें कि 1838 से 1841 तक मिर्जा साहब के वालिद साहब पाकिस्तान इंडिया इस सरजमीन के पास भी नहीं थे, बल्कि अफगानिस्तान में लड़ रहे थे। लेकिन पीछे से चिराग बीबी ने पता नहीं किस तरह मिर्जा साहब और मिर्जा साहब की बहन जन्नत को जन्म दे दिया। तो उन लोगों की बात में कुछ एविडेंस तो होगी ना जिन्होंने कहा है। हाँ, ये तो अब रहील साहब से पूछना पड़ेगा। अच्छा रहील साहब, क्या मिर्जा अच्छा, कादियानी ये को लोग बात खंजीर कहते थे और कुत्ती का बच्चा कहते थे? तो आगे से मिर्जा कादियानी ने भी कह दिया रूहानी खज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 53 के ऊपर कि ओए खंजीर, ओए कुत्ती के बच्चे। आए नजर आए, इधर किधर चले गए, दौड़ गए हैं अच्छा मुरब्बी अच्छा, ये साहब। बात बड़ी ख़तरनाक की है रहील साहब ने कि मिर्ज़ा साहब को गाली लोग देते थे तो वो फिर उल्टा के उनको दे देते थे। तो यार ये तो बड़ी ख़तरनाक बात आपने नहीं, मान के गए खतरनाक हैं। नहीं, ये सच का अल्फाज है। जो मिर्जा साहब यही को बात अदा मिर्जा किए गए कादियानी तो ने रिटर्न हो कही रहे हैं ना। है रूहानी खज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 80 के ऊपर। वो कहता है इन्नमा नरुद्दु सब्बा साबीना अला वजूहिहिम जज़ाअन लिल मुफ्तारियात। वो कहता है लोग मुझे गालियां देते हैं तो वो ही गालियां मैं इनको वापस लुटा देता हूं। तो ये उसने मिर्जा कादियानी की बात रिपीट की है इस ऑडियो के अंदर। मिर्जा साहब ने गालियां दी तो हम जब बताते हैं कि पहले मौलवियों ने गालियां दी थी तो मिर्जा साहब ने जवाबी इल्जाम में गालियां दी, समझ और आई? ये जाहल ने समझ आई कि नहीं? ये दोबारा सुने। जो गालियां मिर्जा साहब के ऊपर मौलवियों ने दी, मौलवियों ने जो गालियां मिर्जा साहब को दी, मिर्जा साहब ने वही गालियां उनके ऊपर बैक कर दी। ये तो इस्लाम देखा, वो रहील ये इसी चीज को रिपीट कर वही गालियां, और वो कह रहा है वही गालियां दी हैं। जी हाँ जी। तो यकीनी सी बात है, ये रहील साहब बताएंगे कि वो कौन था कि जो मिर्जा कादियानी को कहता था कि तू हरामी है, तू हलाल ज़्यादा नहीं है। वो कौन था वो शख्स के जिसने ये गाली निकाली और मिर्जे को कहा कि तू खंजीर है, तू कुत्ती का बच्चा है। इसी वजह से तो मिर्जे ने वापस लुटाई है ना। तो इन कादियानियों से हम पूछेंगे कि चलो ठीक है, वो एक कायदा तुम लोगों ने बनाया कि मिर्जा कादियानी को लोग गालियां निकालते थे तो इस वजह से मिर्जा कादियानी गालियां निकालता था, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन कम अज कम हमें वो बंदा तो बताओ, वो कौन था कि जिसने मिर्जा कादियानी को कहा कि हरामियां, ओए हरामजादे, ओए जुरियातुल बगाया, और रंडी के बच्चे और गश्ती के बच्चे। जुरियातुल बगाया का मतलब होता है रंडी का बच्चा, गश्ती का बच्चा। मिर्जा कादियानी ने ये गाली बार बार दी है, लोगों को खंजीर कहता था, कुत्ती का बच्चा कहता था मिर्जा कादियानी। तो ये कादियानी मुरब्बी अगर कोई सुन रहा है या रहील साहब सुन रहे हैं तो वापस आए, हमें बताएं कि वो कौन से लोग थे, कौन से मौलवी थे जो मिर्जा कादियानी को वलदुल हराम कहते थे, जो खंजीर कहते थे, कुत्ती का बच्चा कहते थे। बताइए जी, मुफ्ती साहब कर ले बात। मेरे मुताले में एक है मुफ्ती साहब, मेरे मुताले में एक है, मैंने पढ़ा था रूहानी खज़ाइन की जिल्द 12 सफ़ा नंबर 231 हुज्जतुल्लाह में कि वो जो मिर्जा साहब का एक मुरीद था मिर्जा अब्दुल हक, जो बाद में ताइब हो गया था मिर्जा साहब ने, उसको मिर्जा अब्दुल हक को मिर्जा साहब ने कहा हुआ है कि तूने मुझे मेरा नाम कुत्ता रखा। उन्होंने इनको कुत्ती का बच्चा कहा था ना कि भाई तू है किसी कुत्ती का बच्चा, तो उसके लिए मिर्जा साहब ने कहा हुआ है कि मेरा नाम तूने कुत्ता रखा है और दूसरी गालियों से तूने मेरा मुंह खोला। और वो फिर कहती है नीचे वह तस्मे मिन्नी कुल्लो सब बिन तुरीदू। अब आप खुद इसका तर्जुमा मुफ्ती साहब को बता सकते हैं।
कि जो भी गाली तू मुझे देगा ना वो तू मुझसे सुनेगा, लेकिन अब इसमें से मुझे मुफ्ती साहब सिर्फ कुत्ती का बच्चा ही मिली है, बाकी खंजीर का वल्दुल हराम का ये अब रहील साहब के जिम्मे है। मेरे जितने सही मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। नहीं, वो तो कुत्ती का बच्चा तो वो देखे ना, वादे तौर पे मिर्जा साहब ने इन कादियानियों को भी कहा हुआ है कि अगर तुमने खालस खुदा परस्त बनना है तो पहले तुम्हें कुत्ती का बच्चा बनना पड़ेगा, तो जब फिर तुम कुत्ती के बच्चे बन जाओगे तो फिर खुदा परस्त बन जाओगे। तो ये तो मिर्जा साहब ने इनको ताकीद की हुई है। और बड़ा जनाब वो हवाला यहाँ कुत्ती का बच्चा, ये 97 के ऊपर ये हेडिंग है सच्चे खुदा परस्त बनो। तो कहते हैं सच्चे खुदा परस्त बनने का तरीका यह है कि कतूरे बन जाओ, ठीक है जी, एक कतूरे बन जाओ, और यानी आगे लिखा है कुत्ती का बच्चा, समझ आई कि नहीं। तो ये तो इनको ताकीद है इन कादियानियों को कि सच्चे खुदा परस्त बनना है, यानी कुत्ती का बच्चा बनना है, तो फिर बात चलनी है आगे, नहीं तो बात नहीं चलनी। जी बात करें। मुफ्ती साहब एक सवाल था, अभी मिर्ज़ा साहब आपकी अभी जो आप बता रहे थे कि वल्दुल जना का, मिर्ज़ा साहब ने भी तो कहा ना जो मेरी किताबें 3 दफ़ा नहीं पढ़ेगा वल्दुल जना होगा, ऐसे क्या रखा, कोई स्टेटमेंट दे रखी है? नहीं, वलदुल जना तो नहीं, उसके ईमान के मुतल्लिक शक की है। वो कहते हैं कि वो जी मुफ्ती साहब इनका उस इशारे की तरफ कह रहे हैं कि तमाम जो नेक लोग हैं वो मेरी किताबों को इज्जत की नजर से देखते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी किताबों को अच्छी नजर से नहीं देखा। वो ज़ुरियातुल बगाया वाला मैंने अभी कहा है ना, ये ज़ुरियातुल बगाया तो मिर्जा साहब की फेवरेट गाली थी, ठीक है, तो वो तो बड़ी गालियां दी हैं ज़ुरियातुल बगाया। तो मैं वो हवाला जरा देख लूं तो मैं अभी फिर आपको वो पेश करता हूँ। ये आ गया, वो हवाला है रूहानी खज़ैन जिल्द 5 है और सफ़ा 547 है, ठीक है ना। ये जिल्द 5 सफ़ा 547 मिर्जा कादियानी कहता है कि मेरी ये वाली जो किताबें हैं ना, तिल का कुतुबुन यंज़िरु इलैहा कुल्लु मुस्लिमिन बियैनिल मुहब्बती वल मुवद्दती, इसको बड़ी तमाम मुसलमान बड़ी मोहब्बत और मुवद्दत की निगाह से देखते हैं। व यंताफियु मिन मुआरिफिहा व युकल्लिबुनी व युसद्दिकु दावती, और इसको दिल से तस्लीम करते हैं, कबूल करते हैं, लेकिन इल्ला ज़ुरियातुल बगाया, मगर जो ज़ुरियातुल बगाया ना ये कबूल नहीं करते। अब ज़ुरियातुल बगाया का तर्जुमा मफहूम जो भी है उसको छोड़ दें, आज देख लें कि कौन है जो मिर्ज़ा कादियानी की किताबों को तस्लीम नहीं करता। वो सबसे बड़े ये कादियानी है। जब मिर्ज़ा कादियानी की किताबें खोलेंगे ये तस्लीम ही नहीं करते, वो कहते हैं नहीं बंद कर दो भाई, बंद कर दो, कुरान खोलो, कुरान, मिर्जे की किताबें तो बंद कर दो ना। तो सबसे बड़े ज़ुरियातुल बगाया तो खुद ये कादियानी है कि जो मिर्ज़ा कादियानी की किताबों को मोहब्बत और मुवद्दत की निगाह से नहीं देखते और इसके मुआरफ से नफा नहीं उठाते और इनको कबूल नहीं करते और इनकी तस्दीक नहीं करते, समझ आई कि नहीं। अब आ जाते हैं ज़ुरियातुल बगाया होता क्या है। रूहानी खज़ैन जिल्द 16 सफ़ा 371 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहता है तिलकल बगाया, और नीचे तर्जुमा लिखा हुआ है कि जन हाय जानिया, यानी जानिया औरत को कहते हैं बगाया और जुरियत कहते हैं औलाद को। तो तर्जुमा क्या बना, यानी जानिया औरत के बच्चे, यानी रंडी के बच्चे, सीधा साधा मफहूम है। आगे अगर यकीन नहीं आता तो ये देख ले, रूहानी खज़ैन जिल्द 16 सफ़ा 426 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं अल बगाया, नीचे तर्जुमा खुद ही लिखता है ज़नाने फासिका। रूहानी खज़ैन जिल्द 16 सफ़ा 428 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं अल बगी, का तर्जुमा लिखता है जन फाहिशा। रूहानी खज़ैन जिल्द 8 सफ़ा 163 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहता है ज़ुरियातुल बगाया, नीचे तर्जुमा उसने खुद लिखा है खराब औरतें, यानी
ذریۃ البغایا خراب عورتوں کے بچے، ان کی اولاد۔ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 49 کے اوپر البغایا کا ترجمہ وہ کرتا ہے کہ بازاری عورتیں۔ تو ذریۃ البغایا کا مطلب سیدھا سادہ نکلتا ہے، یعنی رنڈی کے بچے، گشتی کے بچے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ گالیاں مرزا قادیانی اپنے ہر نام ماننے والوں کو دیا کرتا تھا، ہاں جی، اور اس کو قادیانی تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہاں مرزا قادیانی گالیاں دیا کرتا تھا۔ جب ہم کہیں تو یہ جناب اچھل کود شروع کر دیتے ہیں، دیکھو جی حضرت مسیح صاحب کے اوپر الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا۔ او بھائی ہم نے کون سا الزام لگایا؟ ہم نے تو کتابیں کھول کے دکھائیں، اور تمہارے مربی خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں مرزا قادیانی گالیاں دیا کرتا تھا۔ ابھی کی نشست کے اندر بھی وہ قادیانی مربی رحیل جو ہے نا تسلیم کر کے گیا کہ ہاں مرزا قادیانی گالیاں دیتا تھا۔ جی کریں جی بات۔ جی جزاک اللہ مفتی صاحب۔ رحیل صاحب تو آئے تھے، اور رحیل سے پہلے نا ایک اور بھی تھا طارق محمود۔ وہ ہم آپس میں اپنی کوئی دین کی بات کر رہے ہیں، نہ ہمارا کوئی مرزے کی بات سے لینا دینا، نہ مرزے کی بات۔ ادھر آگے کہتا ہے وہاں پر اتنی زبردست تبلیغ ہو رہی ہے، یہاں پر اجڑی ہوئی پتہ نہیں یہ لوگ بیٹھی ہیں لائف۔ میں نے کہا ٹھہر، پھر تجھے ابھی اجڑی ہوئی لائف تیری ابھی دکھاتا ہوں، اور یہیں پر مرزے کے اوپر لان تان شروع کراتا ہوں، اور جب تک یہ لائیو آباد نہیں ہوگی مرزے کے اوپر لان تان چلتی رہے گی۔ تو وہ اب آپ دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب چل ہی رہی ہے۔ اور یہ بھی میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا تھا، بات کر رہے تھے مفتی صاحب کہ مرزا صاحب کی کوئی دعا، یہ کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب کی کوئی دعا اللہ نے قبول نہیں کی۔ میں نے کہا نہیں یار ایسی بات نہیں ہے۔ محمدی بیگم کے بارے میں مرزا صاحب نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر یہ نشان تیری طرف سے نہیں ہے تو میری ذلتوں کے ساتھ موت فرما، اور ہمیشہ کی لعنتوں کا مجھے نشانہ بنا۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں مرزا صاحب کی موت کوئی قادیانی آ کے ہم سے ڈسکس کر لے اور خود بتا دے کہ یہ موت ذلتوں والی نہیں ہے، تو ہم مان لیں گے کہ نہیں ہے ذلتوں والی نہیں۔ تو سیرت المہدی میں تو ایکسٹریم ذلت والی لکھی ہے، حیات ناصر میں اس سے بھی ایکسٹریم لکھی ہے، خطبات محمود میں تو اس سے بھی ایکسٹریم لکھی ہے۔ مطلب جدھر سے ہم جا کے پڑھیں ذلت بڑھتی جاتی ہے، ذلت بڑھتی جاتی ہے مرزا کی موت کی۔ اور جہاں تک لانتوں کا نشانہ ہے، وہ یہ محمدی بیگم والی کے اندر بھی انہوں نے دعا مانگی ہوئی ہے، پوری ہوئی ہے۔ عبداللہ آتم کی دفعہ انہوں نے لانتوں والی دعا مانگی ہوئی ہے، پوری ہوئی ہے۔ بٹالوی صاحب کی دفعہ اس نے دعا مانگی ہوئی ہے، امرتسری صاحب کی دفعہ اس نے دعا، وہ تو اپنے لیے لانتوں کی دعا اس طرح مانگتا تھا جس طرح لوگ شیرنی بانٹتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر قبول کی ہوئی ہیں۔ ہاں طارق محمود، کیا اور کچھ چاہیے؟ کچھ اور دوستوں کو بلائیں کہ ابھی اتنے کافی ہیں؟ اچھا ابھی یہ آباد ہو دعا گئی کے متعلق میں نے پوچھنا تھا، تو یقین جانے واللہ میں یہی پوچھنے کے لیے آیا تھا دعا کے متعلق ہی، کہ مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ جو میں دعا کرتا ہوں تو وہ پوری ہوتی ہے بالکل، اور نمبر 106 مفتی صاحب، نشان نمبر 106، ہاں اور جی وہ نشان یہ ملفوظات ہے، جلد اول ہے، صفحہ 67 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے یہ الہام ہوا، مجھے یہ الہام بارہا ہو چکا ہے، یعنی کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ وہ کون سا الہام ہے جی؟ اجیب کل دعائی کا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ ہر ایک ایسی دعا جو نفس الامر میں نافع اور مفید ہے قبول کی جائے گی۔ میں جب اس خیال کو اپنے دل میں پاتا ہوں تو میری روح لذت اور سرور سے بھر جاتی ہے۔ جب مجھے یہ اول الہام ہوا، قریباً 25 یا 30 برس کا عرصہ ہوتا ہے، تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں جو میرے یا میرے احباب کے متعلق ہوں گی ضرور قبول کرے گا۔ تو یہی پوچھنے کے لیے میں آیا تھا کہ جب ضرور قبول کرنے کے اوپر اتنی وہ جناب شد و مد سے وہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ ضرور قبول کرے گا، اور مجھے پکا یقین ہے اور مجھے یہ الہام ہوا ہے، تو ذرا بتانا وہ لیکھ رم کے متعلق بھی مرزا قادیانی نے دعا کی تھی؟ ہاں جی
اس کے قتل کے متعلق کہ اس کی موت قتل سے ہوگی. ہاں جی, تو یہ وہ صفحہ بھی میں تھوڑا سا دکھا دوں تاکہ نئے دوستوں کو تھوڑا سا پتہ چل جائے. روحانی خزین جلد 15 صفحہ 395 کے اوپر وہ کہتا ہے پھر جب یقینی اور قطعی طور پر یہ امر فیصلہ پا گیا کہ میری دعا کے قبول ہونے پر آسمان پر یہ اقرار پا چکا ہے کہ لیکھ رام ایک دردناک عذاب کے ساتھ قتل کیا جائے گا, تو میں نے اسی کتاب پر دعا کے صفحہ 28 میں سید احمد خان صاحب کی CSI کو مخاطب کر کے چند اشعار میں ان پر ظاہر کیا کہ اگر دعا کے قبول ہونے میں آپ کو شک ہے تو آپ منتظر رہیں کہ جو لیکھ رام کی نسبت میں نے دعا کی ہے کس طور پر اس کی قبولیت ظاہر ہوتی ہے. اب یہ پوچھنا ہے, دریافت طلب امر یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. مسعود مانا ایک چھوٹا سا سوال ہے کوئی قادیانی کوئی جو اس چیلنج کو قبول کرے اور مرزا قادیانی کے اس الہام کو سچا ثابت کرے. اور ہاں جی, تو یہ تو صرف ایک دعا ہے. ویسے تو دعائیں مرزا قادیانی کی میرے سامنے یہاں پہ کھلی ہیں, کتنی تعداد ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 دعائیں ہیں مرزا قادیانی کی. یہ تو صرف ایک دعا بھی میں نے پیش کی ہے. تو میں چیلنج کرتا ہوں, میں 22 مرزے کی دعائیں دکھاتا ہوں, ان میں سے ایک بھی پوری نہیں ہوئی. مرزے نے جو دعا کی وہ الٹی پڑ گئی. آؤ نا مرزائیو سامنے آؤ, کدھر گئے رحیل صاحب؟ بیعتیں ہو گئی ہیں 101. وہ 4 نمبر ڈش کو بھی فارم دے دو, 13 کو بھی دے دو, 14 کو بھی دے دو. ہاں جی, بیعتیں ہو رہی ہیں, بیعتیں ہو رہی ہیں, بیعتیں ہو رہی ہیں. کیڑی کی لوکاں نو وہا کہ بھائی تو تے اوتھے بڑیاں ڈینگا ماردا سی پیا کہ انہوں نے آل اسلام سے احمدیہ لائبریری کا مطالعہ کر لیا, کتابیں دیکھ لی. نہیں اس کو بھی فارم نہیں دینا, اس نے ابھی تحقیق نہیں کی, تحقیق نہیں کی. اے بربی کدھر گیا ہے یار رحیل؟ اس کو ابھی فارم نہیں دینا, انہوں نے ابھی تحقیق نہیں کی. اچھا کتنے بندے یار, ان کو ابھی بٹھائیں, ابھی چائے وغیرہ پلائیں, اتنی جلدی فارم وغیرہ نہیں دینے کیونکہ انہوں نے اسٹڈی تو کر لی ہوئی ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. نہیں ابھی فارم نہیں ابھی فارم نہیں دینے بھائی. انہوں نے 10 دن ہو گئے اسٹڈی کر رہے ہیں, ان مولوی کا بھی اور جھوٹ پکڑے اور پھر فارم دینے. فارم ابھی نہیں دینے ابھی یار, نہ ابھی نہیں دینے فارم. بالکل ہاں بالکل ہاں. کتنے ہو بڑے یار, ان کو پہلے چائے وغیرہ پلائے. ہاں نہیں یار, ان کو پہلے چائے وغیرہ پلائیں. ابھی آل اسلام لائبریری میں گئے؟ ہاں, آل اسلام لائبریری میں جتنے مولوی اعتراض کر رہے ہیں ہمارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر, وہاں پہ اسٹڈی قرآن و حدیث کی روشنی میں وہاں پہ ہر چیز موجود ہے. ان کو پہلے اسٹڈی کروائیں. اچھا انہوں نے کرنی, ان کو دے دیں فارم. کتنے ہو گئے؟ 11 بندے انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے آج. اور کل کتنے آ چکے ہیں؟ 60. اوکے ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ گپ مار رہا ہے, مفتی صاحب یہ گپ مار رہا ہے رحیل. بندہ انہوں پا لبے نے اللہ بھی کرتے. مفتی صاحب یہ رحیل گپ مار رہا ہے, ڈرامہ کر رہا ہے. ڈرامہ کر رہا ہے اور کیا, جھوٹ سب کچھ جھوٹ گپا.
ओ माय गॉड, कितना यार ये कैसा बंदा, टोटल कैसे गप्पां कहानियां अल्लाह दी बंदे हो, मुफ्ती कहानियां साहब तो नहीं आप नजर लोग आउंदा पिया। अल्लाह का शुक्र करें, मुफ्ती साहब आप लोग अल्लाह का शुक्र करें, उसने तो अभी बांटे नहीं है। वो जो दूसरा बड़ा झूठा बिठाया हुआ है नादिर, वो तो कहता है बैत फार्म खत्म हो गए हैं, बैत फार्म खत्म हो गए हैं, फिर खत्म आना हो अभी गए हैं। दोबारा ऑर्डर किए हैं। अच्छा वो थोड़े दिन पहले ना एक लेडी को बिठा के तो वो रो के बता रही थी कि वो जमात अहमदिया उसने ज्वाइन कर लिया, मिर्जा साहब को नबी मान लिया। और कल परसों वो अपनी ब्राड पे कह रही थी मेरा जमात अहमदिया से कोई ताल्लुक नहीं। हेलो अभी 10-15 दिन हो गया, सारे लोगों ने सुनी है। ਰੇਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਰਹੀ ਕੋਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਉਹ ਦੁਆਓਂ ਗੌਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਵੇ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा ये सारी कैसे 255 मुल्कों में चली गई है, इनाम पूरा हो गया है, मैं तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा। और यहाँ पर अभी हम इलामों की बात नहीं कर रहे, इलाम कहते हो मैं खोल लेता हूँ। अभी तो मिर्जे की दुआओं का कह रहे हैं मुफ्ती साहब, दुआओं और इलाम में फर्क पता है? अच्छा फैजी भाई यार ये कैसी बात है, वो कितने तरीके के साथ, मतलब पूरे प्लानिंग के साथ वो ड्रामा कर रहा है पूरा। सुनने वाला तो यही समझेगा ना कि यार वाकई जाहिर है इतना कोई ड्रामा थोड़ा ही करेगा। कादियानी और मकर ना करे, झूठ ना बोले। कभी हो सकता है मुफ्ती साहब आपको 25 साल हो गए हैं इनके साथ घुलते हुए, आपको कोई कादियानी आज तक नजर आया झूठा ना हो, मकर ना कर रहा हो? किसी सियाने बंदे ने इनके बारे में ये बात कही है कि एक ते पढ़े लिखे एक ते पढ़े लिखे नहीं हो तो कोशिश भी नहीं करते। नहीं यकीन जाने, वैसे तो मैं ना उस कादियानी को तलाश कर रहा हूँ कि जिसने अपने बाप का खालस दूध पिया है ना, तो वो हो सकता है वो जवाब दे। मुजफ्फरगढ़ में है मुफ्ती साहब, एक मुजफ्फरगढ़ में है। मुजफ्फरगढ़ में नहीं, ये मुबशर जो है ना कादियानी मुरब्बी मुबशर कालू राना, मुबशर कालू नहीं, मुबशर कालू। अच्छा तो उसका एक कजन है, वो आए ना तो हो वो कादियानी है। ये देखिए सुने जरा। नलैक आदमी ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਆਪ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ FIA ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮਰਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀਆਂ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਮੇਰਾ ਕਦਮ FIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਖਾਲਦ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਜੰਜੂਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਦੋਂ ਵਾਵਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਰਦ ਦੀ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਛਾਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। क्या बात है, क्या किन्ना दुੱਧ हो कि साहिवाल नस्ल ਦੀ ਮੱਝ ਤੋਂ ਗਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਜੂਦ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਲਮ ਔਰ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸੀਰਤ ਔਰ ਨੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਉਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਅਸਲ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈ, ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਖੱਬੇ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ ਜੇ।
होए यकीन असल करो। में ये है कि मिर्ज़ा कादियानी की इस इबारत को इन्होंने सच्चा साबित करने के लिए अपने कजन खालिद जंजुआ से भी दूध जो है ना वो पुलवा दी है, वो बल्कि मक्खन मुफ्ती और साहब घ्यो वो भी कह निकाल रहा है दी। कि कितनी शादियां हमने जो है ना हाँ इसी जी, हाँ तरह जी। हाँ, चाय बनाई है पूरे पूरे देगा ठीक है चो ਉਹ चो के ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ बस। ਕਿੰਨਾ अच्छा मुफ्ती साहब इस दूध को चाइना इंपोर्ट कर सकते हैं बेचने के लिए? नहीं थोड़े वो पता नहीं, हम तो इस मुरब्बी को तलाश कर रहे हैं, ये आके सही कादियानियत की ना और मिर्ज़ा कादियानी को सच्चा साबित करेगा। जिसने अपने बाप का खालस दूध पिया होगा ना वो मुरब्बी आओ यार, आओ ना जरा थोड़ा जिहा नेड़े ਨਹੀਂ ते ਤੇ लगो। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈ। वो तारिक महमूद साहब नीचे लिख रहा है कि ये साइंटिफिकली भी प्रूफ है। ਅਪਰੂਵ ਹੈ ਉਹ। अच्छा आप आ जाओ, आप हमें इधर ਇਹ दिखाओ ना। ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ चल कर ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ ਆ ਕਾਦੀਆਨ ਦੀ ਜਾਓ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਬਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਚੱਸ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਨਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਆਪ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਓਏ ਹੋਏ ਬੱਕਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮਰਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀਆਂ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਦਮ FIA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਣਾ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਜੰਜੂਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਦੋਂ ਵਾਵਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਮੱਖਣ, ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਰਦ ਦੀ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਈ ਏ। ਉਹ ਤੇ ਯਾਰ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਬੜਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਚੋਇਆ ਜੇ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਓਏ ਮਰ ਜਾਓ ਮਰਦਈਓ, ਨਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਲਿਆ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਯਾਰ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਮੁਰਗਨ ਗਜ਼ਾਵਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਚੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ? ਓਏ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ FA ਤੱਕ, BA ਤੱਕ, MA ਤੱਕ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। MA ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਈ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੱਝ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਬਸਾਂ ਕਾ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਾਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬਗੈਰ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਓਏ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਫੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 4-5 ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇਦਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਯਾਰ उमर भाई आप बहुत कमाल ही हो गया वाहियात बातें करते हैं यार। ਉਹ ਭਾਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੱਝ ਫੰਡਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਫੰਡਰ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। कितना शाह अपनी तारीफ सुनकर बला क्यों गुड करता है? मॉर्निंग, मेरी बात सुनो। हेलो गुड सुनो मॉर्निंग भाई, में तुमने लो तो जुमला बड़ी शुरू लिखा ना होने यार, लगी एक है मिनट चुप भाई। कर जाए प्लीज। उमर भाई गुड मॉर्निंग सुनो, मेरी बात सुनो। गुड मॉर्निंग अपनी सुन लो, तारीफ मेरी बात तो सुनकर सुन लो बला ना। क्यों करता है? ओ मरने वाले ना हो जाओ, तुम्हारा जुमला जो लिखा उसका जवाब ले लो, फिर आगे जवाब देना।
ये जो मैंने बददुआ तुमसे तुम हमें दे पूछा रहे है, हो ना अपनी यार, तारीफ सुन तो सुनकर लो। भला क्यों करते ओ भाई हो? तुम्हारा मैंने जवाब पूछा है, सुनेंगे, पहले इस बात तो सुन लो ना। कुत्ते, तुमने एक जुमला लिखा है दुआ दी है, उसका जवाब बता लो। कुत्ते की सुनो मेरी पुछल बात, क़यामत तक ये सीधी जो नहीं होनी। तुमने दुआ दी है ना, यही तुम्हारी पुछले राजपूत क़यामत तुम्हारा तक जो ठीक अहमद नहीं की होनी। जान अभी बैठा हुआ है ना, इसकी पाल्टा की बगैर होती थी तो- आईडी टेलीफोन। बगैर तो इससे पूछ लो टेलीफोन से, तुम्हारी इसका पुछले सक्का भाई क़यामत था तक ठीक राजपूत। नहीं होनी। ये दोनों भाई मिलके हमें यही बददुआ दिया करते हैं जो तुमने लिखी है। और अहमद की जान से पूछो राजपूत की मौत कहाँ पे हुई है, वो तुम्हें खुद बताएगा। तुम्हारी मेरे पास पुछले उसकी क़यामत रिकॉर्डिंग तक है, ठीक नहीं तुम्हारे होनी। अहमद की जान की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जिसमें वो बता रहा है राजपूत भाई गए तुम्हारे वो कुत्तों की स्पॉइलर में पुछले गैस क़यामत लीक हो तक रही ठीक थी, नहीं होनी। वो पोटी के लिए बैठे वहीं पे फौत हो गए। जो हमें ये बददुआ जो तुम दे रहे हो ना, ये आज नहीं, आज से 20 साल पहले राजपूत ने अपनी दी थी। तारीफ 1 साल के सुनकर अंदर बलात् अल्लाह ने नहीं वहीं किया पर उसकी करते। मौत की थी। और याद रखना मुकाबला किया करते ये जो हैं। तुम दुआ अभी तुम लिख रहे हो, मुकाबला करो। तुम्हारा भी अल्लाह ने अगर वही मर्द हो इल्जाम तो। करना है। तुम्हें मरते वक्त मेरे ये इंसानों अल्फाज की याद तरह आएंगे जब मुकाबला तुम करो, जगह देखोगे। इंसानों की तरह मुकाबला करना सीखो, मैदान में आओ। नहीं अब्बे का दुध पी के आया है कि हम ही आगे गला करने लग पे हैं। शाह साहब को किसी ने कॉल किया आपको इस बंदे ने? तो उनको मौका दे। अपनी जा तारीफ जा सुनकर पहले जाके बलात् अपने नहीं अब्बे का दुध करते। पी गया, जा दफा हो पहले चल। अच्छा मत पैदा करो, मत पैदा आपका करो। दिमाग कहाँ चला गया हुआ है? जिस वक्त को कुत्ता भौंक रहा होता है, हम बुजुर्गों की क्यों बात करें यार? हम उस कुत्ते को जवाब देने के लिए हम काफी हैं। उलमाए कराम को हम क्यों आगे करें ह्यूमैनिटी भाई? हमारे पिछले क़यामत तक ठीक नहीं होनी, सीधी नहीं होनी। मर्द है वो आगे मैदान में गालियां बैठे लिख रहे हैं हैं। यार, गालियां। बात जो लिख रहा हो उसको हमने उलमाए कराम को कहना है कि इसको गालियों के जवाब दे। नायाब खान भी दुध दे दिया, नायाब खान दा थाने दे मुंह साहब उसने देखो गालियां देनी शुरू की हैं। इसका भाई, क्या हम तो- लगता है? उलमाए कराम भाई, की बात कर रही है, हमसे बात फैज कर भाई, लग जाते हो इकट्ठे। फैज भाई, हम तो मर्द है मैदान में बैठे हैं, ये तो हमल भी देते हैं और दूध भी देता है, तो औरत कौन हो गई? साहब की आजम सैफी से अभी मैंने ब्लॉक कर दिया उसने। नहीं नहीं, मैं तो आपसे जवाब दे रहा हूँ। एक-एक करके आप बोल दो। दूध भी देते हो और हमल भी देते हो। वो एक-एक करके आपका बोल मर्द दो। हम हामिल भी हो जाते हैं और दूध भी यार देता है, तो मिर्जा मर्द साहब कौन से, हो गया? मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है आऊं आऊं कुत्ते की तरह भौंकते हैं मेरे मुरीद। आऊं आऊं वो कंजरो, ओए दे मुंह च थण पाओ किसे मरद दा इनको होश मिर्जा आवे। साहब वाली गालियां निकालो निकालो। थाने दी लोड़ ही नहीं। वो रोहानी कंजरो। गलाइन तो मिर्जा साहब की 4 गाली सफा आपको नंबर सुनाते 700 हैं। उस पर आपने ये गाली दी हुई है भाई, कंजरों वाली। नहीं, और मिर्जा मैं साहब- बताता हूँ, आप गाली बताओ, मैं तुम्हारे आपको कुत्तों मिर्जे की की पुछले किताब का क़यामत सफा तक सीधी बताऊंगा नहीं जहाँ से होनी। आपने गाली पढ़ी है। आप गाली बताओ, नई गाली बताओ, पुछले अगली बताओ। क़यामत तक ठीक नहीं होनी, सीधी नहीं होनी। तुम कुत्तों की पुछले क़यामत तक मैं सीधी वो भी नहीं बताता होनी। हूँ मिर्जा साहब ने कहाँ लिखी हुई है। आप गालियां बताते जाओ, देते जाओ, हम बताते जाएंगे सिर्फ मिर्जा साहब ने कहाँ लिखी हुई है ये गाली। मिर्जा साहब की तालीमात क़यामत तक हमें सीधी नहीं आगे होनी। बोलो। अपनी तारीफ सुनो। तुम कुत्तों की पुछले क़यामत तक सीधी नहीं होनी। बता सकता आजम सैफी ने भी फैजी भाई पसमा के ना चंगी तरह पसमा के ते मुंह च थण पाओ। ये कुत्ते वाला तो मैंने अभी पढ़ा है यार, रेफरेंस थोड़ी देर हुई है। रूहानी खजाइन जिल्द 12 हाँ, बहुत, सफा बहुत। नंबर 200 क्या था ह्यूमैनिटी? शुक्र है ये मिर्जा थोड़ा और मौलवी जिंदा अब्दुल आपके करे। साथ जो लगे हुए थे, क्या पेज नंबर था ह्यूमैनिटी, याद है आपको? क्या भी मैंने पढ़ के अपनी सुनाया है? पुछल गालियां तो सीधी करके कुत्ते बता। को यार, आप बताओ और कौन सी गाली बताए, और बताओ और गाली बताओ। ओए कुत्ते, अपनी पुछल सीधी करके दिखा। अरे ये कुत्ते वाली गाली के तो बता दिए, कोई नई वाली बताए ना। ये तो 3-4 दफा एक ही गाली तो नहीं दी। सही गाली बताया हमने आपको। 1379 गालियों के रेफरेंस देने हैं भाई। मैं आप तुझे गालियां नई बताते बात जाए, हम बता आपको रहा बताते हूँ। जाएंगे पेज नंबर कौन सा है, वो किस पेज नंबर पे लिखी है, कहोगे स्कैन भी लगा के दिखा देंगे उसी वक्त ऑन द स्पॉट। 93 होगा। बड़ा तुझे करो बोल फैज रहा भाई, हूँ, इसको बड़ा अपनी करो। पुछल सीधी करके बता। अपनी पुछल सीधी करके बता। और सुन रहा है? नहीं तू वो कुत्ता है कि तेरी 100 साल की पूछा भाई नहीं ना सुराख में। गंदी गंदी गालियां दो यार, ये गंदी गंदी वाली गलीज वाली दो। ना डीठ बनो, जिद नहीं किया करते। अपनी पुछल सीधी करके बता। और नहीं तू वो कुत्ता है जिसकी सारी 100 साल की पूछा तो नाली च पा के रखी ना तो सही नहीं सी हुई। ढीठ तेरी का भी पुछल भी रेफरेंस सीधी दे देता हूँ, होनी। ये भी मिर्जा साहब ने कहा हुआ है, लेकिन ये छोटी गाली है, गंदी वाली दो, जैसे मिर्जा साहब मैं का पूछता उम्मती होने का हक पूछूं। अदा करो। पूछता कुछ जाता किधर है, सीधी करके बता पुछल अपनी। और तेन दसिया तो है कि तेरी तेरी जड़ी है ना पुछ लो 100 साल की पई उसको रहे तो उमर सीधी नहीं हो भाई, आप सकती छोड़े तेरी पर फीस।
उसको गालियां मैं देने तो दे, वो तुझे गाली देगा, मैं तो तुझे मैं सफा बता नंबर रहा हूँ, बताऊंगा, मैं खोल के बैठा हूँ ना किताब, फिर मैं क्या तो करें तुझे आप? बता रहा हूँ, अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी पुशल क़यामत तक के लिए टेढ़ी रखी है, वो नहीं सीधी होनी। ये जवाब है तुम्हें। तो छोटी गाली है यार, को बड़ी वाली दो। इससे बड़ी गाली क्या होगी? गालियां दे के हमने जुबान गंदी करनी है तुम्हें? कौन तुम्हें गालियां दे रहा है? मिर्जा साहब क्यों देते थे? अभी मुफ्ती साहब, हैं? मुफ्ती साहब फिर दिखाओ, इन नवा आया जे गा गाली मर्दानी बंदा गाना दे, गा, मुफ्ती साहब गाली दिखाएं बंदा प्लीज। दे, नहीं अभी दिखाते गाली हैं मुफ्ती बंदा साहब, दे, गालियां तो मैं इंसान दिखाते को हैं दे। मुफ्ती साहब। इंसान में अल्लाह ताला ने शर्मो हया रखी है, वो गाली सुनकर उसका सार नीचे हो जाता है। तुम इंसान मिर्जा होते साहब में नहीं थी, तुम मिर्जा साहब में नहीं थी शर्मो या जो वो गालियां देते तो थे। तुम बाज आ जाते। ओ भाई छड्डो, किस नाल सिर खपा रहे हो यार, की करते पे? हाँ इन चौक के तल्ले मारो यार। हमारा मैं उसकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर रहा हूँ, ये जो गालियां वो जो मुफ्ती के रेफरेंस बता रहा हूँ मुफ्ती बस। मुबशर साहब बैठे ना, फिर खपाओ, हम बोलते अगर रहेंगे। इजाजत हो तो मैं बोल लूं। मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये मुरब्बी तू साहब, बोलता नहीं, तू भोंकता है। क्या मैं भोंकूं? मुरब्बी साहब किसी मौजू पे बात करनी है तो आजिज हाजिर है, कुत्ते शाह, तो अगर ऐसी बात करनी है तो वो फिर फैसल बैठा हुआ है, वो बेहतरीन गुफ्तगू कर सकता है आपसे। कुत्ते शाह, बेहतरीन गुफ्तगू तुझे नहीं आती? तू तो मुफ्ती है। तो मैं कह तो रहा हूँ कि किसी मौजू पे बात कर लें। शाह जी दफा करो यार, बंदे यार इन चुकी उते क्यों यार? भाई आप तेरी मेहरबानी पूछन थोड़ा भी सा टाइम दें। अच्छा सारे मुफ्ती साहब अभी छोड़ दे इसको, मैं बात बताता हूँ। मेहरबानी खान साहब थोड़ा सा टाइम दे बात दें, करेगा। नहीं आप भाई चुप कर जाए, मुफ्ती साहब को डील करने दें। अभी थोड़ा सा टाइम दे दें। अब्दुल भाई आजिज म्यूट लगा ले, सारे म्यूट लगा लो। अब्दुल भाई, उमर भाई क्या म्यूट। किया जाए? अल्लाह ताला ने तुझे क़यामत तक के लिए टाइम दिया है, तुझे क्या टाइम मिले? बोलने जितना आपने बोलना है बोल लें, बाद में फिर मुझे टाइम फिर सुना दीजिए। कर ना, फिर सुना कर। जी सुनाते रहे। तुझे बोला तो है अल्लाह ताला ने तुम्हारी पुशल क़यामत तक के लिए टेढ़ी रखी है, तो क्या वक्त लेना तुमने? बस हो गई बात? हाँ हो गई, ये बोल। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने पूछना ये था कि मिर्जा गुलाम कादियानी ये जो कोको वाइन पीता था, उसने अपनी जिंदगी के अंदर कितने डाले पिए होंगे? कोई तादाद पता है आपको? अपनी पुशल सीधी करना, फिर तुझे सारा पता चल जाएगा। अच्छा, फिर पता चल जाएगा। आप पुशल आपको नहीं सीधी पता? करके आप अपनी पुशल सीधी करना नहीं, पहले। शराब मिर्जा जी पीते थे, पूछ ले, आप दूसरों की सीधी करवाते हैं। हाँ तो सीधी कर लो। नहीं मतलब ये तो शराब पीने वाले को पता होना चाहिए ना कितने डाले मैंने खत्म किए। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को तो सारी दुनिया मानती है, अल्लाह का नबी। एक तो मिर्जे कादियानी खंजीर को आप अलैहिस्सलाम कहेंगे तो मैं खंजीर कहूंगा। वजह यह है कि आप लोगों के नजदीक अगर वो अलैहिस्सलाम है तो हमारे नजदीक मिर्जा कादियानी खंजीर है। मेरी सुन, फिर हम मिर्जे कादियानी को खंजीर कहेंगे, फिर आप नाराज ना होइए। कुत्ते सुन मेरी बात। हजरत बात सुने, मिर्जा गुलाम अगर आपने मिर्जे कादियानी को अलैहिस्सलाम अब दोबारा कहा तो मैं मिर्जा का मेरी एक डायरेक्ट मिनट बात मिर्जे को सुन, मैं खंजीर फिर तुझे कहूंगा। सुनूंगा। मेरी एक मिनट बात समझे? सुन। ये देखे हवाला आपके सामने मौजूद है, मकतूबत अहमद है, एक मिनट जिल्द खामोश हो, चहारम कुत्ते। है, सफा 248 है। एक मिनट मिर्जा खामोश हो, कादियानी कुत्ते। कोको वाइन पिया करता था। कुत्ते, एक तो मिनट मैंने ये खामोश हो। पूछना था कि इस कुत्ते, एक कोको मिनट वाइन खामोश हो, के तुझे कितने बताता हूँ। डाले मिर्जे कादियानी ने अपनी पूरी जिंदगी में कुत्ते एक मिनट पिए? खामोश होएगा, मैं तुझे बताता हूँ। जी सुन मेरी बताएं बात। जी, ये कितने गालियां डाले? जो तू निकालता है ना, ये तू हजरत मिर्जा गुलाम अहमद को गालियां नहीं निकालता, ये तू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां निकालते हो। ये कोको वाइन शराब के मिर्जे ने कितने डाले पिए थे अपनी पूरी जिंदगी में? ये तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हो। नहीं, यहाँ पे रसूल पाक का जिक्र तो कहीं नहीं है, मिर्जे कादियानी खंजीर का जिक्र हजरत मिर्जा मौजूद है। गुलाम अहमद, हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अल्लाह ताला के फजल करम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नबी रूहानी बेटे हैं। ये गाली ठीक है, वो रूहानी बेटे का पूछ रहा हूँ कि उसने कितने डाले अपनी जिंदगी में पिए हैं? मैं तुझे यही बता रहा हूँ ना, ये तू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब कह रहा है। ओ भाई, कोको वाइन किसने पी है? यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है? वो तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है ना, अल्लाह ताला भाई से ये मकतूबत अहमद है, ये देखे अल्लाह ताला से पूछ, सफा अल्लाह ताला से 248 पूछ। है, जिल्द चहारम है, मकतूब नंबर 113 है। मिर्जा कादियानी कोको वाइन पीता रहा। अल्लाह ताला से पूछ।
तो अल्लाह आपसे ना ताला पूछे। साहब सबसे नीचे मिर्जे के दस्तखत दिखाएं फिर मानेगा। ये ले जी, दस्तखत ये ले दिखाएं। वस्सलाम खाकसार मिर्जा गुलाम कादियानी। ये अल्लाह ताला से पूछ, रसूल पाक सल्लल्लाहु नहीं, अलैहि वसल्लम आप के लोगों से ना मतलब पूछे, कह रहे हो। आप लोगों से ना पूछे। बैठो ले आओ डाला। अल्लाह को एक मानता छोटा सा है? सवाल किया याद अल्लाह को रब्बी मानते, जी। मेरा भी छोटा सा सवाल है, अल्लाह को मानते हो? नहीं, आप थोड़ा सा बता दें। एक मैं डाले तुझे कह रहा में, हूँ अल्लाह को मानते हो? अल्लाह को एक मानते डाले हो? में 12 बोतलें होती हैं, तो आप बता दें कितने डाले पिए और होंगे मिर्जे तू का। जितनी भी रोज पीता है, इस बात को छोड़, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ अल्लाह को तो मानते नहीं, हो? हमारे मजहब दीन के अंदर तो हराम है ना। हाँ तो इसीलिए पीते हो ना, इसीलिए पीते नहीं, हो हम ना। नहीं पीते, हमारे दीन में हराम है। हाँ तो पीते रहे हो ना, तो अब नहीं पीते, पीते तो रहे हो ना। मैं कह रहा हूँ हराम है, तो आप तू कह रहा है, तूने अभी कहा कि अब हम नहीं पीते। भाई, आप मेरे पीने का कोई हवाला नहीं दे रहे, लेकिन मैं मिर्जे कादियानी वो के तू हवाला शराब नहीं, पीने का तेरी हवाला दे रहा हूँ, आपके तेरी सामने जुबान मौजूद ने है। सच बोला है, तेरी जुबान ने सच बोला है। जो जुबानें तुम्हारी क़यामत के दिन बोलेंगी ना, वो नहीं, तू मैं अभी तो कह हवाला रहा है। दे रहा हूँ। अगर वो मैं तेरी भी जुबान कहीं बोल रही कोको है, वाइन पीता तेरी रहा जुबान, हूँ, तो आप हवाला दे दें कि बोल देखो रही तू है भी कि मैं कोको वाइन पीता रहा है। तूने अपनी जुबान से खुद बोला है कि मैं पीता रहा हूँ। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, इल्जामी तौर पे कह रहा हूँ कि आपने जो इल्जाम मेरे ऊपर लगाया, उसका बगैर दलील के आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि मैं आपको दलील दे रहा हूँ, दलील से बात कर रहा हूँ। अगर तूने अपने इल्जाम की तस्दीक की है कि मैं चले, पीता रहा ठीक हूँ। हो गया, ठीक हो हाँ तो गया, ठीक हो गया, तो पीता रहे ना तू। चले आगे मुझे बताएं कि ये कोको वाइन के कितने डाले मिर्जे कादियानी ने पूरी जिंदगी में पिए होंगे। ये मुझे ये बता, अल्लाह को मानते हो? ओ भाई, कोको वाइन के कितने डाले पिए? मैं तुझे जवाब देता हूँ ना, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ अल्लाह ताला को अल्लाह मानते कौन सा अल्लाह? मिर्जा कादियानी तो कहते हैं अल्लाह मैं हूँ। हो? तूने बात जवाब भाई, सीधा मैं देना हो मिर्जे तो कादियानी, मसला अगर भी तो हल हो अल्लाह जाए। कहते हो मिर्जे कादियानी को, तो मैं तो उसको खंजीर मानता हूँ मिर्जे कादियानी को। कुत्ते की पुछल टेढ़ी है तो वो कैसे जवाब दे? टेढ़ी नहीं, ओ यार, हाँ, कैसी? किसी चीज पे अच्छा, रुको तो टेढ़ी सही ना। नहीं। क्या मैं अच्छा, हवाला ये दूं? भी खोला इनकार कर मिर्जे रहा दी है कुत्ता। किताबां, अच्छा, खोला कुत्ता ये मिर्जे भी दी इनकार कर किताबां, बैठा है कि टेढ़ी नहीं। मिर्जे अच्छा, दी किताबां खोला फिर, अच्छा कुत्ता ये भी खोला इनकार कर फिर, बैठा है जहाँ कि पे ये उसने टेढ़ी कहा है कि मैं अल्लाह हूँ, बल्ले, एन बल्ले, अल्लाह मैं बल्ले। हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह। तो ना मैं तो तुझसे- कोको वाइन का आपने कोई जवाब मैं दिया है, तो तुझसे पूछ आगे रहा भी हूँ कोई अल्लाह नहीं ताला जवाब को देना मानते आपने। हो? मैं तुझसे पूछ अगर रहा हूँ मैं अल्लाह ताला- मिर्जे कादियानी का वो हवाला भी दिखा दिए ना, आपने जवाब उसका भी कौन नहीं देना। मैं तो तुझसे पूछ रहा हूँ, तू जवाब दे रहा है? किस चीज का? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ अल्लाह ताला को मानते हो? ओ, पहले अल्लाह का फैसला तो करे, कौन सा अल्लाह? मिर्जा कादियानी तो कहता है एन मैं अल्लाह तुझे- तो मैं हूँ। ये देखिए मैं हवाला। रब्बुल आलमीन, मैं दुनिया नहीं, ऐसे दुनिया नहीं, पैदा रब्बुल करने वाले आलमीन को- मिर्जा मैं रब्बुल आलमीन दुनिया- को नहीं ना मानता। और पागल मिर्जा है। कहता है रूहानी खज़ाइन जिल्द 5 सफ़ा 564 के अंदर कि मैं वरई तो दुनिया फिल्म पैदा नामी करने ऐन वाले अल्लाह रब की बात कर रहा हूँ, वतयक्कन दुनिया- तो अन्ना नहीं हुआ कि मैंने चुप करना अपने है। आप को एन अल्लाह बने देखा और मैंने यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह ही हूँ। अब मुझे बताएं कि हमने मिर्जे कादियानी को अल्लाह मानना है या किसी और को अल्लाह मानना है? रब्बुल आलमीन को मानता है। नहीं, मिर्जा कादियानी खंजीर को की बात कर रहे हैं आप। रब्बुल आलमीन को मानते हो? भाई, रब्बुल आलमीन किस चीज का नाम रखा है आपने? बताएं तो सही। मिर्जा तो कहता है वो रब्बुल आलमीन अल्लाह मैं हूँ। इसका मतलब है तू अल्लाह का भी इनकारी है। ओ, मैं इनकारी नहीं हूँ। पहले ये देखे एन अल्लाह, वो कहता है एन अल्लाह तो मैं हूँ। हाँ तो फिर ये बताना कि तू अल्लाह को मानता है। मैं इस खंजीर को नहीं मानता, मिर्जे कादियानी खंजीर को, जिसकी ये इबारत है। ये तो गाली तो रसूल पाक उनको दे रहा है ना। ओ भाई नहीं, खंजीर खुद मिर्जे कादियानी ने अपने आप को कहा है। आप उसका भी हवाला दूं हवाला? मैं तो हवाला तलब करें ना, आज से हवाला तलब करें आप। तो हाँ या ना में जवाब दे, अल्लाह ताला को नहीं, मानते हो? देखें आप बार बार मेरे ऊपर इल्जाम लगा तुझे रहे किसने हैं। पैदा किया है? पहले देखे मैंने तुझे कोको किसने- वाइन का हवाला दिया, तुझे आपने इसका कुत्ते कोई को जवाब किसने नहीं पैदा दिया। किया है? तुझे फिर ये- जनाब आपने अल्लाह की बात की, उसका हवाला दिया, कोई मैं जवाब तुझसे नहीं। पूछ रहा अब हूँ, अगर तुझे- आप मुझे कहते हैं कि कहाँ पे मिर्जे कादियानी ने अपने आप को खंजीर कहा है, तो मैं उसका हवाला दे देता हूँ, आप तलब करें मैं मुझसे। तुम्हें पूछ रहा हूँ, तुझे कुत्ते सूर को किसने पैदा किया है? हाँ जी, तुझे कुत्ते सूर को किसने पैदा किया है? मिर्जे कादियानी खंजीर ने तो पैदा नहीं किया, जबकि मिर्जा कादियानी खंजीर कहता है कि आदम को इसी के अगले सफे के ऊपर 564 के अगला सफा है 565, उसमें वो कहता है कि आदम को मैंने तख्लीक किया, तमाम बनिए आदम को मैंने तख्लीक की है।
तूने अपने नाम के साथ मुफ्ती क्यों लगाया हुआ है? इस वजह से कि मैं मिर्जे की किताबें पढ़ता हूँ। हाँ, कुरान ही ना पढ़ते, किताबें हजरत मिर्जा गुलाम अहमद की भाई किताबें मिर्जा पढ़ते। कादियानी तो कहता है मेरी किताबें पढ़ो, जो तो मेरी पढ़ो ना किताबें नहीं पढ़ता और मेरी किताबों से नफा हासिल नहीं करता वो जुर्रियतुल बगाया है। हैं? बताए यार हम क्या करें, बताएं तो सही। हाँ तो पढ़ो ना तो। कुरान मेरे मुंह की बातें हैं मिर्जा साहब का ऐलान, कुरान तो मेरे मुंह की ना। बातें हैं। बिल्कुल। नहीं, मिर्जा कादियानी तो कहता है कि मेरी जो किताबें हैं तिल का कुतुबुन यंजिरु इलैहा कुल्लु मुस्लिमिन बिआइनिल मुहब्बति वल मुवद्दति व यंताफिउ मिन मुआरिफिहा व युकल्लिबुनी व युसद्दिकु दावती इल्ला जुर्रियतुल बगाया। मिर्जा तो कहता है मेरी किताबों को तमाम मुसलमान बड़ी मोहब्बत की निगाह से, मुद्दत की निगाह से देखते हैं और इनसे नफा उठाते हैं। हाँ, माशाअल्लाह, बिल्कुल। लेकिन अगर मेरी किताबों को जो लोग मुसलमान- नहीं पढ़ते या नफा नहीं उठाते वो जुर्रियतुल बगाए हैं, यानी रंडी के बच्चे हैं। तो जो आप पढ़ते- कह रहे हैं कि नहीं मिर्जे की किताबें ना पढ़ो, क्या करें? तू रंडी का बच्चा है ना, इसलिए तू पढ़ता है ना। मैं कैसे हो गया, मैं तो पढ़ रहा हूँ। हाँ तो रंडी का बच्चा है ना। अच्छा, जो पढ़े वो रंडी का बच्चा होता है? जो फायदा हासिल करता है वो मुसलमान होता है। हंसते क्यों हो? नहीं, जो मिर्जे का देनी की किताबें पढ़े वो रंडी का बच्चा होता है? नहीं, अगर नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक एक शख्स झूठा हो, नाउजुबिल्लाह, तो तुम्हें जरूरत क्या पड़ी है मुखालफत करने की? ये नहीं, मुखालफत तो नहीं कर रहा है। मैंने कौन सी मुखालफत की? मैंने यार एक मिनट यार, मेहरबानी सारे दोस्त इधर, मेहरबानी इधर। वो फायदा वो हासिल करता है जो बात ये है कि मुसलमान है। अभी तक मैंने कोई मुखालफत की हो, मैंने जो सिवाय रसूल हवालों पाक- के जो ये देखिए रसूल- पहला हवाला ये पेश किया रसूल मैंने पाक कोई मुखालफत को की, मानते हो? बताएं। रसूल पाक को कोको मानते हो? वाइन का हवाला पेश किया मैंने कोई मुखालफत की। नबियों दूसरा के हवाला सरदार- मैंने नबियों ये के जनाब सरदार हजरत ऐन मोहम्मद अल्लाह सल्लल्लाहु होने अलैहि का वसल्लम को पेश मानते किया है, हो? मैंने कोई मुखालफत की। आज तीसरा माइक- हवाला अभी आज मैं माइक पेश म्यूट कर नहीं रहा कर हूँ, रहे। ये आज तिल माइक का नहीं बंद कुतुबुन कर वाला, रहे। मैंने कोई मुखालफत की, बताएं। आज माइक नहीं बंद कर रहे, क्या बात है? नहीं, आप जवाब दे ना, मैंने कब मुखालफत की है? मैं तो कह रहा हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो? हाँ जी, रसूल पाक कौन सा रसूल पाक? मिर्जा कादियानी तो कहता है रसूल पाक मोहम्मद मैं हूँ। मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो नबियों के सरदार की बात कर रहा हूँ। आजिज ने पूरी किताब इस मौजू पे लिखी है, कादियानी कलमा। मैं तो नबियों के सरदार मिर्जा की बात कादियानी तो कर कहता है रहा हूँ, रसूल रहमत पाक लिल और मोहम्मद और आलमीन, अहमद मैं ही मोहम्मद हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो? नहीं, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से वाले? मिर्जा कादियानी तो नबियों कहता है के- मोहम्मद मैं हूँ। नबियों पैगम्बरों और रसूलों के नबियों पैगम्बरों रसूलों के आगे नहीं समझ आई। सरदार नबियों पैगम्बरों रसूलों के सरदार सरदार, ठीक हो गया। तो वो कौन मानते सी हो? हैं? वो तो दो हो गए हैं, दो मोहम्मद हैं। नबियों तो तुझे पैगम्बरों पता हो- रसूलों के सरदार। मिर्जा कादियानी कहता है तमाम नबियों रसूलों पैगम्बरों का सरदार मैं ही हूँ, मोहम्मद मैं ही हूँ। अच्छा तुमने दो बना लिए। अच्छा तुमने दो बना नहीं, लिए। मैंने नहीं बनाए, तुम्हारी किताबों में आजिज ने पूरी किताब लिखी है यार। मैं खोला फिर किताबां हवाले दिया। तू इस किताब को बंद कर, तू अपने अपना कीदा बता। रसूलों का ना सरदार ਤੁਸੀਂ तुम्हारा ਮੈਨੂੰ कौन है? ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਖਲਵਾਣੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? तुम तो कहते हो कि तुम तो कहते हो मिर्जा गुलाम अहमद की किताबें ही ना पढ़ो। मैंने जो कब पढ़ता है वो कहा काफिर हो जाता है? है। मैंने कब कहा है? कौन? अच्छा, तू नहीं कहता? अच्छा नहीं, मैंने कब यार, क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? मैं तो पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ यार। हैं? बंद तो करो। किसी एक चीज का जवाब दिया आपने। अच्छा एक किताब नु बंद कर, एक किताब नु बंद कर। चल। कौन सी किताब? अभी तो बंद ही है, बंद है। बंद है? अच्छा चल अपना कीदा बता। पैगंबरों का मर्जिया चरस पीती हो, बंद किताब गए हैं, बंद कर। मैं तो समझ रहा था आप अकल से नबीने हैं, मुझे तो लग रहा है आप आंखों से भी नबीने हैं। आपको कोई समझ ही कख नहीं आ रही। ਉਹ ਮਰੇ ਇੰਨੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਹੈ? तुम्हारे नबियों पैगंबरों और रसूलों का सरदार कौन है? तो यार फैसला तेरा केस ही भाई। मैं संभालना है मुफ्ती साहब, मैं संभालना है इनू। ਆ ਕਾਕਾ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ जी आ जाओ जी, पिंड मैदान च आ जाओ। पहले ये दसो कि मिर्जा हलाली किवें है? मैं नहीं कह रहा, मौलवी अलेक्जेंडर नस डोई ने तस्दीक करके तहरीर मौलवी नस करके गई। ਇਹਦਾ DNA मुफ्ती ਕਰਕੇ नस गई ਦੱਸਿਆ तुहाने। ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਓ 4 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਾਦੀਆਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਸੀਟੀ ਚਿਰਾਗ ਬੀਬੀ ਮੁਫਤੀ ਕਸੀਟੀ ਨੇ ਨਸ ਗਈ ਕਸੀਟ ਤੁਹਾਨੇ। ਕੇ ਇਸ ਖੰਜਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਫਤੀ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੇ ਨਸਦੀ ਆਪ ਟੱਟੀਖਾਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਾ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਟੱਟੀਖਾਨੇ ਤਸਦੀਕ ਬਹਿ। ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਦੀ ਜਾ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1974 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾੜੇ, ਦਾਦੇ ਉਹ ਵਾੜੇ ਨੂੰ ਟੱਟੀਖਾਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪੇਜ 1231 ਤੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੇਜ 1231 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਤਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਨੀਮ, ਇੱਕ ਜ਼ਨੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੀ इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।